Good morning, all of you. In this part of nitro compounds, we will discuss about the differentiation methods in between the primary, secondary, and tertiary nitro compounds. Means how can we differentiate between the primary, secondary, and the tertiary nitro compound using the chemical test. So there are the different methods for the differentiation of primary, secondary, or the tertiary nitro compound. Out of these different methods, the first one is the hydrolysis method. So first of all, we take the primary nitro compounds. So what are the primary nitro compounds? The compounds in which the carbon containing NO2 group is attached with one alkyl group, one carbon atom. That carbon atom may be of alkyl carbon atom, maybe the aryl carbon atom, maybe the cycloalkyl carbon atom. वो आपका कोई भी हो सकता है. तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, जो किस चीज की स्ट्रक्चर, दैट इज द नाइट्रोइथेन. इट इज ए प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि द नाइट्रो group is present on that carbon atom, जो हमने रेड कलर से शो किया, on that carbon atom which contain one alkyl group, that is the CH3 group here, जो हमने पिंक कलर से शो किया है. अगर हम इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस किससे करेंगे? We can do the hydrolysis using the HCl or the H2SO4. These may be the boiling HCl or the boiling H2SO4. They will give the carboxylic acid, but initially they gives the carbonyl hydroxylamine, which on further hydrolysis will give the carboxylic acid. Let's see the reaction. That is the nitroethane on undergo hydrolysis with the boiling HCl or the H2SO4 initially gives this carbonyl hydroxylamine. Carbonyl hydroxylamine हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गए, which on further hydrolysis, क्योंकि जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस. देखो हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस. अब होगा क्या? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देखो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक बार स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. तो इसलिए जो नाइट्रोजन है इसकी तरफ कौन आएगा? बोलो इधर H पॉजिटिव, और कार्बन के पास बोलो उधर कौन आएगा? OH नेगेटिव. सो फाइनली वी गॉट द टू प्रोडक्ट, दैट इज द एसिटिक एसिड CH3COH प्लस में NH2OH मींस हाइड्रोक्सिलामीन. So what we see that the nitroalkane, primary nitroalkanes on hydrolysis with boiling HCl or H2SO4 gives the carboxylic acid. In that particular case, the nitroethane on hydrolysis with boiling HCl or the H2SO4 gives the acetic acid along with the hydroxylamine. Exam में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि convert nitroethane into acetic acid or you can say the ethanoic acid. तो आप कैसे convert करेंगे? Simply by doing the hydrolysis using the boiling HCl or the boiling H2SO4. और इंटरमीडिएट जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना वो कौन बना था? वो थे आपके कार्बोनिल हाइड्रोक्सिलामीन. Similarly, when the secondary nitroalkane undergo the hydrolysis with the boiling HCl or the H2SO4, they gives the ketones and the nitrous oxide और nitrous oxide देते हैं. और ये 2 moles यूज होते हैं यहाँ पे. These 2 moles of that secondary nitro compound will be used. और इसका IPAC नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का जो IPAC नेम है, because the principal chain has 3 carbon atom. देखो ये principal chain है इसकी. It is the principal chain. It is the principal chain. It has 3 carbon atom. 3 means prop आप यूज करेंगे. There is a single bond, so ane आप यूज करेंगे. Word root here is prop because the number of carbon atom in the principal chain 3 number, so the prop. उसके बाद आपकी जो principal chain है, it is saturated one, so you add ANE, so the propane. Or the substituent here is NO2, क्योंकि nitro group is such type of functional group which always act as the secondary functional group. तो secondary functional कौन होते हैं? Secondary prefix कहलाते हैं. तो secondary prefix कहाँ पे लिखते हैं? word root से पहले. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? nitro. The APAC name of that compound is 2-nitropropane. ये 2-nitropropane है. इस 2-nitropropane के अंदर the carbon containing OH also have a H atom. इसके ऊपर एक H है. So the secondary nitro compounds can also undergo the hydrolysis like that of the primary nitro compounds with the boiling HCl or the H2SO4, and they gives the product that is the ketones. Let's see how. तो अपने hydrolysis की, hydrolysis के बाद देखो हमने बताया 2 moles use होंगे. तो on one of the secondary nitro alkane, that is the 2-nitropropane here, there is 1 H. देखो 1 H in second mole there is also 1 H. These 2 H आपके यहाँ से रिप्लेस होंगे यहाँ से, और यहाँ पे बोलो कौन लगेंगे? OH. क्या आ जाएंगे बोलो यहाँ पे? OH. OH एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? पहले एक ऑक्सीजन आएगा. तो जो एक ऑक्सीजन आता है, देखो हम आपको यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की भी देखो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बिकॉज इट इज very sensitive towards the hydrolysis. CN bond are very highly sensitive towards the hydrolysis. तो देखो क्या हुआ, ये क्लीवेज हुआ यहाँ पे
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बोलो क्या आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन। देखो आया कैसे, ये हम आपको बता दें कि देखो CH3, ये कार्बन, ये सेकंड CH3। हाइड्रोलिसिस के बाद जब व्हेन देयर अकर्स द ब्रेकेज ऑफ टू बॉन्ड्स, CN बॉन्ड ब्रेकेज एंड द CH बॉन्ड, तो यहाँ पे बोले कौन आ जाते हैं, 2OH, एंड द कार्बन कंटेनिंग मोर देन 1OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस हो गया, क्या बच गया आपको, मींस कौन बन गया आपके कीटोन, कौन बन गया आपके कीटोन्स। तो इस टाइप से आपके कीटोन्स बन जाते हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से इंटरमीडिएट आपका बनता है। और उसके बाद साइड प्रोडक्ट कौन बना, वन इज द N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, प्लस H2 प्लस वाटर भी लॉस हो जाता है। जो टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, दीस टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड हैव नो H एटम ऑन द कार्बन कंटेनिंग NO2, बिकॉज़ जो टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड है उसमें वो कार्बन जिस पे NO2, उस कार्बन के ऊपर कोई H नहीं है, सो दीस टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट अंडरगो द हाइड्रोलिसिस विद दीस बॉइलिंग HCl or the boiling H2SO4, and thus we can differentiate between the primary, secondary and the tertiary nitro compound। तो इस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। आपके कन्वर्जन भी देखो हो गए। पहला कन्वर्जन बोलो यहाँ पे क्या बना, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड जो हमने ले रखा है उसका नाम क्या है, नाइट्रोइथेन। तो एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट नाइट्रोइथेन इनटू एसिटिक एसिड। तो लास्ट में देखो जो आपका प्रोडक्ट बनाया बोलो वो कौन है, दैट इज द एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, आप इसे कह सकते हैं। ये कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडरी में क्या है, 2 नाइट्रोप्रोपेन को किस में कन्वर्ट करें, ये आपका एसीटोन। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया बोलो कौन है, ये एसीटोन, या आप इसे प्रोपेन 2-on भी कह सकते हैं, आइपेक नेमिंग के बेसिस पे प्रोपेन 2-on। नंबरिंग की आपने तो 1 2 3, तो 3 हो गए तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन में तो N का E हट जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका देखो C डबल बॉन्ड, और जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे इसके दोनों साइड में कार्बन है तो कीटोनिक ग्रुप है तो ONE। पोजीशन 2 है इसकी तो 2 आगे पीछे हाइफन तो प्रोपेन 2-on, और ANE के E को हटा दिया क्योंकि जो ये फर्स्ट लेटर है O दैट इज ए वोवल। ये जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर क्या है, O इज ए वोवल, तो इसलिए ANE के E को हमने ड्रॉप कर दिया तो नेम क्या बन गया, प्रोपेन 2-on, जिसे एसीटोन भी कहते हैं आप। Tertiary nitro compound shows no reaction with that boiling HCl or the H2SO4। Next हम देखते हैं next method means we can also differentiate the primary, secondary or the tertiary nitro compound by their reaction with the halogen in presence of alkali। तो देखो हमने क्या किया, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स आपने लिए, ये जैसे नाइट्रोमीथेन आपने ले लिया यहाँ पे और आपने इसकी रिएक्शन की Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये ऐसी रिएक्शन है जैसे कि आपने पढ़ा था आइडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आप पढ़ते थे, उसके अंदर भी आप रिएजेंट बिल्कुल सेम ही यूज करते थे। HVZ रिएक्शन उसमें भी आप Cl2 यूज करते थे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मींस आपकी ये हेलोजिनेशन आप कर रहे हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जिसकी वजह से होगा क्या, आपने ये पढ़ा है कि जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तो जिसकी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन आपके रिप्लेस हुए किसके द्वारा, आपके Cl के द्वारा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, CCl3NO2 एंड दैट इज कॉल्ड द क्लोरोपिक्रीन, आल्सो कॉल्ड एज द टीयर गैस, इसे आप टीयर गैस भी कहते हैं। CCl3NO2 इज द टीयर गैस। आपने यही जो सेम प्रोडक्ट है आपके जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर आपको याद होगा, वहां पे देखो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, वी हैव द रिएजेंट दैट इज द क्लोरोफॉर्म, देखो CHCl3 प्लस में हमने वहां पे एक रिएजेंट लिया था नाइट्रिक एसिड, देखो इस टाइप से HNO3 दैट इज द नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड की देखो हमने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, देखो इस टाइप से ये HNO3 देखो ये ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे वन बॉन्ड नाइट्रोजन का, ये डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड बोलो कैसा होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये HNO3 की स्ट्रक्चर थी। तो वहां पे क्या हुआ था, इसी टाइप से जो CHCl3 की स्ट्रक्चर को भी अगर हम ओपन फॉर्म में लिख दें, हम अल्टरनेट वे बता रहे हैं आपको, देखो ये CH और बोलो कौन था यहाँ पे Cl, ये Cl और ये Cl, क्लोरोफॉर्म, देयर इज द लॉस ऑफ वाटर, देखो इस टाइप से वाटर लॉस हुआ था वहां पे ये HNO3 के साथ जब रिएक्शन हुई, तो when chloroform reacts with HNO3 it also results in the formation of that tear gas, और देखो यहाँ से क्या लॉस हुआ था, वाटर। तो मींस जो टीयर गैस है ये आपकी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, जिसे आपकी क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, तो टीयर गैस दैट इज द क्लोरोपिक्रीन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म बाय देयर रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, आपके जो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड लिया वो भी आपने नाइट्रोमीथेन लिया, और नाइट्रोमीथेन के अंदर आपने क्या डाला, क्लोरीनेशन की है बेसिक मीडियम, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोपिक्रीन।
तो ये हमने देखा प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में कि प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड कैसे क्लोरोपिक्रीन में कन्वर्ट हुए, और हमने क्लोरोपिक्रीन और कहाँ पे हमने रीड आउट किया था कि वो कहाँ से सिंथेसाइज हमने उसकी की थी, वो भी हमने साथ के साथ आपको बताई। क्योंकि अगर आपको इस तरह से पढ़ते हुए वो चीज याद आनी शुरू हो जाती है आपके माइंड के अंदर कि हाँ हमने देखो वो चीज वहां पढ़ी थी, तो इट मीन्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपकी बिल्कुल ठीक ट्रैक के ऊपर चली। अगर आपको ये याद नहीं आई थी चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड डाली तो आपके क्लोरोपिक्रीन बनता, अगर आप उसको भूल चुके हैं तो इट मीन्स आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो आप और अच्छे से रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके ऑन द टिप्स रहे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। तो ये साइड प्रोडक्ट थे आपके NaCl प्लस वाटर। तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, दी सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, सिमिलरली उसी टाइप से। और इसके पास भी बोलो क्या है, देयर इज वन H atom on the carbon containing NO2 in the secondary nitro compound also the carbon containing NO2 also have one H, that is the acidic H, जो आपके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम इन नाइट्रो कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो एसिडिक होता है, जो रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, विच कैन इजिली बी रिप्लेस्ड बाय द Cl, तो वहां से H की रिप्लेसमेंट हुई विद द Cl, और इस टाइप से आपका प्रोडक्ट आपके सामने रिएक्शन हो गई आपकी सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स की भी। तो जो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड ऑल्सो रिएक्ट विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, द सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड ऑल्सो रिएक्ट विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप Cl2 ना लें तो Br2 भी ले सकते हैं। और इस टाइप से जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, दीज आर दी अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि आपके अल्फा H ही की तो प्रेजेंस होनी जरूरी है। आपके अल्फा मींस अल्फा हाइड्रोजन मींस एसिडिक हाइड्रोजन मींस रिएक्टिव हाइड्रोजन, जितने हैं उतने ही तो H की रिप्लेसमेंट होगी। मैक्सिमम आपके H नाइट्रो कंपाउंड्स में कितने हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 4, और आपके जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके ऊपर एक वैलेंसी तो कंप्लीट होगी NO2 ग्रुप से, बच गई वैलेंसी 3। तो मैक्सिमम आपके कितने H हो सकते हैं, 3H ही हो सकते हैं, जो हमने प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड में लिया। और वहां पे कार्बन के ऊपर तीनों H ही ले लिया हमने, एग्जाम्पल ही ऐसा लिया, जैसे कि नाइट्रोमीथेन हमने लिया। और फिर हमने जब उसकी हेलोजिनेशन की, क्लोरिनेशन की बेसिक मीडियम, तो तीनों H हट गए, तीनों एसिडिक H हट गए, तीनों रिएक्टिव H हट गए, रिप्लेस हो गए विद द Cl एटम। और इस तरह से जो प्रोडक्ट बना था आपका क्लोरोपिक्रीन, यहाँ पे भी आपकी वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, आपकी H की रिप्लेसमेंट हुई Cl के द्वारा, क्योंकि एक ही आपका रिएक्टिव हाइड्रोजन था। अगर हम सेम रिएक्शन को करें टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, बोलो किसके अंदर, साइड प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे क्या बने, N2O प्लस में वाटर। तो कई बार साइड प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखें। द सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ऑन रिएक्शन विद Cl2 in presence of base gives the nitrous oxide as the साइड प्रोडक्ट, ऐसे यानी पूछा जा सकता है। ये बनेगा या नहीं आप खुद सोचिए, नो इट विल नॉट बी फॉर्म। तो ये हमने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था ये देखने के लिए कि आप ठीक से इस चीज को याद भी कर पाते हैं नहीं। तो आपके यहाँ पे ये साइड प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, बोलो सिंपल आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, आपका H हटा और बोलो क्या लग गया वहां पे Cl। तो एक H हटा, एक Cl के साथ गया, तो बोलो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल सकता है, यहाँ पे निकल सकता है HCl। तो वो तो हमने जानबूझ के लिखा था ये देखने के लिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि चीजें आपको याद भी रहती हैं या नहीं। हम टर्शियरी नाइट्रोएल्केन लेते हैं। टर्शियरी नाइट्रोएल्केन्स, in case of tertiary nitroalkane there is no alpha hydrogen atom, no acidic hydrogen atom on the carbon containing NO2. So the tertiary nitro compound shows no reaction with the halogen like the chlorine or bromine in the basic medium due to the absence of that alpha hydrogen atom, due to the absence of that acidic hydrogen atom, due to the absence of that reactive hydrogen atom। जो reactive होता है alpha hydrogen atom वो है ही नहीं, so there occurs no reaction। So in such a way we can differentiate in the primary, secondary, or the tertiary nitro compound। The best method is the next method, that is the, देखो यहाँ पे Cl2 no reaction, best method is that next method, that is the Victor-Meyer method। और ये Victor-Meyer method, that is the not a new method for you। अब इस method को you have already discussed that Victor-Meyer method in case of the alcohols के केस में, where you differentiate in between the primary, secondary, the tertiary alcohol by using that same method, that is the Victor-Meyer method। मैं आपको वो दोबारा से यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, उसका पार्ट भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का भी। देखो आपने ये लिया प्राइमरी अल्कोहल, द कार्बन कंटेनिंग OH अटैच विद द, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर OH है वो किससे अटैच है, अटैच ओनली विद वन एल्काइल ग्रुप, तो उसे आप क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम ले ले सेकेंडरी अल्कोहल, द कार्बन कंटेनिंग OH फर्दर अटैच्ड विद टू एल्काइल ग्रुप, दैट इज द CH3 ग्रुप, दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली the alcohol in which the carbon containing OH is attached with 3 alkyl group, like in here the carbon containing OH attached with the 3 methyl group, so that is the tertiary alcohol। अब हम
क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस दैट OH ग्रुप बाय द NO2 ग्रुप। अगर हम ये जो OH है इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में, अगर हम इस OH को हटा के NO2 लगा दें तो आपके वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ तक का मेथड तो आपका रहेगा अल्कोहल के लिए, और फर्दर वाला कॉमन रहेगा। तो देखो हमने क्या किया, आपके देखो OH को हटा के हमने तीनों केस में क्या लगा दिया, NO2। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे बन गए। तो आपके जो विक्टर मीयर मेथड था विच इज प्रीवियसली बीन स्टडीड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेकिन उसके दौरान हमने किया क्या था, हम पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट करते थे। क्या रिएजेंट आप यूज करते थे, देखो OH को हटा के आप हेलोजन लगाते थे। देखो OH को हटा के आपने हेलोजन लगाया, देखो HI रेड फास्फोरस। फिर जब हेलोजन लग गया आपका आई, उस आई को हटा के आपने क्या लगाया, NO2। बोलो कैसे, AgONO के द्वारा। हमने पढ़ा था पहले AgONO आपका कोवलेंट कंपाउंड है, तो जिसकी वजह से सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, देखो ऑक्सीजन के पास भी, तो कौन डोनेट करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो N के थ्रू बॉन्ड बना, तो इसलिए NO2 ग्रुप आपका लग जाता है इन ऑल द 3 केसेस। तो ये बेसिक फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। ऊपर देखो जो रिएक्टेंट हम प्राइमरी वाला ले लेते हैं, उस रिएक्टेंट का नाम है, देखो उस रिएक्टेंट का नाम है इथेनॉल, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, देखो इसका नाम फिलहाल क्या है, नाइट्रोइथेन। तो आपके एग्जाम में इतना भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू नाइट्रोइथेन। तो आप क्या करेंगे, क्या आप डायरेक्ट OH को हटा के NO2 लगाएंगे, नो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, विल रिप्लेस द OH बाय द हेलोजन। हेलोजन जैसे हमने यहाँ पे लिया HI रेड फास्फोरस, तो OH हटा और क्या लग गया आपका I, हमने ब्रैकेट में लिख भी रखा है OH2I, यानी OH की रिप्लेसमेंट हुई I के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने डाला सिल्वर नाइट्राइट, उसका रीजन हमने बता दिया, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नाइट्रोजन एटम है वही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उस कार्बन को जिसके ऊपर I लग चुका है। देखो मैं साइड में यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि जब ये फर्स्ट रिएक्शन हुई तो आपका देखो ये आपका बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट CH3CH2I। देखो इस टाइप से फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जब हमने इसमें क्या डाला, HI में रेड फास्फोरस, ऐसे ही हर केस के अंदर। अब ये जो कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे हेलोजन पे बोलो क्या स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करे, देखो ये नाइट्रोजन को होता है इस टाइप से, और यहाँ से ये निकल जाता है I नेगेटिव, आपका लिविंग ग्रुप I नेगेटिव है यहाँ पे, तो लग गया ना नाइट्रोजन के थ्रू, तो AgI इज द साइड प्रोडक्ट, AgI निकल जाएगा, तो मींस I हट गया और क्या लग गया यहाँ पे NO2। तो यही हमने ब्रैकेट में लिखा है, देखो पिंक कलर से आपको दिख रहा है कि I2NO2, I हटा और NO2 लगा। तो ये हमने इन शॉर्ट हमने लिख दिया था यहाँ पे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में हम आगे क्या डालते हैं, वी ऐड द नाइट्रस एसिड। हम सभी के अंदर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, यू हैव द 3 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और द टर्शियरी अल्कोहल। आफ्टर एडिंग द HI red phosphorus in the first step, followed by the addition of the silver nitrate, we got the primary nitro compound in one test tube, the secondary nitro compound in the second test tube, the tertiary nitro compound in the third test tube. After the formation of the primary nitro compound, secondary or the tertiary nitro compound in these different 3 test tube, now we will add the nitrous acid. हम nitrous acid ऐड करेंगे। अब आप ध्यान से देखें कि जो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है उसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कितने हैं, देयर आर द 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम, देयर आर द 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो अल्फा पोजीशन है। कार्बन बोलो कौन सा है ये, जिसके वो कार्बन जिस पे NO2 अटैच है कौन सा है वो अल्फा, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। तो दीज आर दी एसिडिक व्हिच कैन इजीली बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जो नाइट्रस एसिड देखो हम ऐड करेंगे, देखो HNO2 देखो हमने लिखा, इसमें क्या होगा, 2 है हाइड्रोजन एसिडिक, तो नाइट्रस एसिड का देखो यहाँ से O और वहां से बोलो उसका क्या H2, देखो इस टाइप से, और बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से, इस टाइप से वाटर लॉस। तो वाटर लॉस हो गया, बोलो हाउ मेनी बॉन्ड ब्रेक, कितने बॉन्ड टूटे, आपके नाइट्रो जो कंपाउंड है, नाइट्रो जो इथेन है उसके कितने बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड कार्बन के ऊपर से, क्योंकि 2 H आपके रिप्लेस हो गए। नाइट्रस एसिड के अंदर से आपके N और O के बीच का डबल बॉन्ड टूटा। तो आपने पढ़ा है व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो न्यू बॉन्ड आपके कहां पे बनेंगे, न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ द नाइट्रस एसिड। सो दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन गया, और N के ऊपर क्या लगा रह गया, OH, क्या लगा रह गया OH, और कंपाउंड दस फॉर्म्ड इज द नाइट्रोलिक एसिड। तो एग्जाम में ये काफी बार आ चुका है कन्वर्जन, कि कन्वर्ट नाइट्रोइथेन इनटू नाइट्रोलिक एसिड। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोलिक एसिड है, क्योंकि ये आ चुका है पहले से। तो आप क्या ऐड करेंगे, सिंपली नाइट्रोइथेन में क्या ऐड करें आप, HNO2 नाइट्रस एसिड, और इसी टाइप से ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखेंगे HNO2 की, और इस तरह से वाटर लॉस होते हुए आप दिखाएंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड के अंदर भी हमने वही देखो नाइट्रस एसिड आपने डाला, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी नाइट्रो जो कंपाउंड है बोलो उसका आईपैक नेम क्या है, देखो हमने पहले भी बताया था आपका
प्रिंसिपल चेन देखो 1 2 एंड 3, 2 के ऊपर नाइट्रो है तो इसका आईपैक नेम होगा इस कंपाउंड का 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम होगा बोलो इसका? 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये जो 2 नाइट्रोप्रोपेन यहाँ पे एक सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें जब आपने डाला नाइट्रस एसिड, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम, वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो वो कार्बन जिसके ऊपर NO2, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा। और उस अल्फा वाले कार्बन पे कितने H है? देखो एक ही तो H है, देखो ये रहा एक H। यही तो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकता है, यही तो रिएक्टिव है। यहाँ से सिर्फ H पॉजिटिव लॉस हो सकता है, इसलिए जो नाइट्रस एसिड का बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से? OH। देखो नाइट्रस एसिड का OH और इसका बोलो क्या H, देखो इसी टाइप से वाटर लॉस हो गया। आपकी बार कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? नाइट्रो कंपाउंड के अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रस एसिड के अंदर से भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच से एक ही बॉन्ड ब्रेकेज हुआ। मींस न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वेयर द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड? इन बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो C के ऊपर क्या लग गया? ये NO, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच न्यू बॉन्ड बन गया, और प्रोडक्ट जो बना इसका नाम है सूडोनाइट्रोल। तो एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा चुका है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द 2 नाइट्रोप्रोपेन इनटू सूडोनाइट्रोल। अगर आप टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं तो इन केस ऑफ टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड देयर इज नो एसिडिक, नो रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो देयर अकर्स नो रिएक्शन विद HNO2। HNO2 डाला तो नो रिएक्शन। अब हम फर्दर डालते हैं इसमें बेस QH डालते हैं इसके अंदर, या NaOH डाल देते हैं। जैसे हमने NaOH डाला इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब, तो जो फर्स्ट केस है उसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखें, जो नाइट्रोलिक एसिड है उस नाइट्रोलिक एसिड के अंदर जो NOH है वहां पे H लगा हुआ है। बोलो क्या लगा हुआ है? H। देखो ये याद रखने का सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं, तभी तो उसका नाम भी है नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव लॉस कर सकता है, क्योंकि एक H आपके अटैच है वहां पे ऑक्सीजन के साथ। वैसे तो एक ऑक्सीजन ऊपर भी अटैच है, देखो OH ग्रुप। लेकिन जो ये नाइट्रोलिक एसिड है, जब हम इसके अंदर NaOH डालते हैं द फर्स्ट टेस्ट वी गॉट द रेड कलर। हमें कैसा कलर मिलता है? बोलो यहाँ पे रेड कलर मिलता है। ये हमें क्रैम ही करना पड़ता है, लेकिन हम इसको याद कैसे करते हैं? हम ऐसे याद करते हैं कि जो आपने पढ़ा है कि जो ब्लू लिटमस होता है टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड हो जाता है एसिडिक कंपाउंड के। इसका कंपाउंड का नाम क्या है? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो आपके देखो आंसर क्या है? रेड कलर। तो ऐसे आप यानी अजम्पशन बना के माइंड के अंदर एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ हमें याद रखना है यहाँ पे रेड कलर आता है। तो मीन्स नाइट्रोलिक एसिड के अंदर जब आप NaOH डाला उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपके रेड कलर आ जाता है। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें रेड कलर आ गया, बोलो उसमें कौन था? प्राइमरी अल्कोहल, या यू कैन से द प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। तो हम ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं। आपके पास अगर 3 टेस्ट ट्यूब हो, 3 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी नाइट्रो, दूसरे में सेकेंडरी और तीसरे में टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड डाल के दे दिया जाए, और ये कहा जाए कि हाउ कैन यू डिटरमाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब इज प्राइमरी और द सेकेंडरी और द टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड, और द प्राइमरी और द सेकेंडरी और द टर्शियरी अल्कोहल। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? फाइनल रिजल्ट देखते हुए। फाइनल रिजल्ट क्या है यहाँ पे? रेड कलर। जिस टेस्ट ट्यूब में आया रेड कलर, तो उसके अंदर था प्राइमरी अल्कोहल, और यू कैन सी द प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला? बोलो सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड वाली टेस्ट ट्यूब में दोबारा NaOH डाला है, और यहाँ पे ब्लू कलर ब्लू रहा, मींस ब्लू कलर आपका आप यहाँ पे आ गया। तो अगर आपने NaOH डालने से रेड कलर आता है तो प्राइमरी अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब है या प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड वाली टेस्ट ट्यूब है। If you got a blue color, it means that particular test tube have the compound that is the secondary alcohol or the secondary nitro compound. While in case of the tertiary nitro test tube, tertiary nitro compound test tube or the tertiary alcohol test tube, there occurs no reaction previously also with the nitrous acid, and also no reaction takes place after the addition of the NaOH. तो NaOH डालने से कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो 3 टेस्ट में 3 अलग अलग कलर आपके आ गए। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस आप करते हैं और फाइनल ऑब्जर्वेशन देखते हैं कलर के बेसिस के ऊपर। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर बोलो रेड कलर आ गया, बोलो कौन? उसमें प्राइमरी अल्कोहल है या प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है। वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आ गया बोलो कैसा? ब्लू कलर, उसमें कौन है? सेकेंडरी अल्कोहल था या सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है। और वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर वो कलरलेस रहा, कोई कलर ही नहीं आया, तो इट मींस उसके अंदर था टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी और द टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स। सो थैंक यू।